قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس ہوا۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ ہائیڈل اور تھرکول کے علاوہ ملک میں کوئی پلانٹس نہیں لگائیں گے۔ علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی، قائمہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں آج پاور ڈویژن کی جانب سے اور وزیر توانائی کی جانب سے پاور سیکٹر کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد سے ہائیڈل اور تھرکول کے علاوہ ملک میں کوئی پلانٹ نہیں لگے گا۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امپورٹڈ فیول پر کوئی پلانٹ نہیں لگائے جائیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پہلے 4 پلانٹس لگے تھے ان کو بھی ملکی کوئلے پر شفٹ کرنے جا رہے ہیں، جس سے ہمیں $1 کروڑ کی بچت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر توانائی یہ کہنا ہے کہ اس عمل سے ملک میں فی یونٹ $2 کی کمی ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے بجلی کی طلب کے مطابق بجلی خریدنی ہوتی ہے۔ سولر اور ونڈ پاور پلانٹ جو ہیں وہ دیگر پلانٹس کی طرح 24 گھنٹے نہیں چلتے ہیں۔ اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ بجلی کی مانگ کا ہے، اور بجلی کی مانگ میں 10% تک کمی ہوئی ہے۔ آج قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بجلی صارفین سے سالانہ 860 ارب روپے کی ٹیکس وصولی کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور خبر دیں گے آپ کو، ریاض سے پشاور آنے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز حادثے سے بچ گئی۔ پشاور ایئرپورٹ کو فلائٹ آپریشن کے لیے جمعے کی صبح 10:30 بجے تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ محمد صلاح الدین سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے صلاح الدین۔ دیکھیں، بالکل پشاور کے بادشاہ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سعودی ایئر لائن کے طیارے کے لینڈنگ گیئر میں آتش زدگی کا واقعہ ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پشاور ایئرپورٹ کو فلائٹ آپریشن کے لیے جمعے کی صبح 10:30 بجے تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ CAA کی جانب سے تمام ایئر لائنز کو نوٹم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ چونکہ پشاور آنے والی تمام پروازوں کو متبادل ایئرپورٹ پر اتارے جانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے، چونکہ جہاز رن وے پر ہی موجود ہے، جس کی وجہ سے پروازوں کے لیے رن وے دستیاب نہیں ہوگا، یہ کہنا ہے ترجمان سول ایویشن کا۔ دوسری جانب طیارے حادثے سے متعلق ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ نے بھی طیارے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ خیبر پختونخوا میں سٹون کرشنگ سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت، اور جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ راجہ محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ سپریم کورٹ نے خانپور کے علاقے سورج گلی میں 3 کرشنگ پلانٹس کا حکم دیا ہے، اور سورج گلی میں بند ہونے والے کرشنگ پلانٹس میں حاجی خطاب گل، نیازی 1 اور نیازی 2 شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت سے دیگر جو اسٹون کرشنگ پلانٹس کی جو فیکچوئل صورتحال ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ طلب کی ہے۔ آج ہونے والی سماعت کے موقع پر اس بینچ کی سربراہ کی جانب سے یہ کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ کرشنگ پلانٹس کے قریب 50 گھروں کی موجودگی نہیں ہے، اور تاہم جو پلانٹس ہیں جو ریکوائرڈ اسٹینڈرڈز ہیں اس کو پورا نہیں کرے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ آبادی کے قریب سٹون کریشنگز کو پہلے ہی بند کر چکے ہیں۔ عدالت کریشنگ پلانٹس کی بندش کا جنرل حکم نہ جاری کرے۔ جنرل حکم سے سرمایہ کاروں پر بہت فرق پڑے گا۔ لکی سیمنٹ سمیت مختلف فیکٹریاں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سٹون کریشرز کے وکیل تھے اعتزاز احسن، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مقامی افراد جان بوجھ کر آلودگی پیدا کرتے ہیں، اور آلودگی کم کرنے کے لیے ہم نے چند روز پہلے جدید مشینری پر 15 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کس مشینری پر 15 کروڑ خرچ کیے۔ پیپر بک سے مشینری کا نام اور کام دونوں بتا دیں، معیار پر پورا اترنے کے ساتھ ہی سٹون کرشرز جو ہیں وہ اپنی درخواستیں دے دیں۔ عدالت کے سامنے یہ بھی کہا گیا کہ عدالت کے سامنے قانون کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ اس پر وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مرکزی کیس کو ابھی زیر التوا رکھا جائے۔ عدالت نے اب رپورٹ طلب کرتے ہوئے اس کیس کی سماعت کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں شہری حکومت کی جانب سے درخت کاٹنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ اصغر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی، شہری احمد نواز نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ جیل روڈ چورنگی پر درخت کاٹ دیے گئے ہیں، اور یہ شہری حکومت کی جانب سے کاٹے گئے ہیں کیونکہ میئر کراچی کے ہدایت پر ڈی پاس نے درخت کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے 21 اگست کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے میئر کراچی سے بھی وضاحت طلب کی ہے کہ وہ اس صورتحال کے بارے میں اپنا موقف پیش کریں، اور دیگر فریقین سے بھی کہا ہے کہ وہ بتایا جائے کہ یہ درخت کیوں کاٹے گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے درخواست میں کہ شہری حکومت کی کام درخت لگانا ہے اور شجر کاری کی مہم چلانا ہے، لیکن یہ جو درخت کاٹے جا رہے ہیں یہ ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے کراچی کے انوائرمنٹ پر اثر پڑ رہا ہے۔ اس پر عدالت نے 21 اگست کو تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر وفاقی کابینہ نے کمرشل، زرعی اور بلک صارفین کے لیے بجلی کا ٹیرف بڑھانے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق کمرشل صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں 8 روپے 4 پیسے اضافے کی منظوری دی گئی۔
जुलाई से कमर्शियल सार्फिन का फ़ी यूनिट टैरिफ 77 रुपये 15 पैसे तक पहुँच जाएगा। काबीना ने ज़रई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे का इजाफा मंजूर किया है। जुलाई से ज़रई सार्फिन का फ़ी यूनिट टैरिफ 40 रुपये 83 पैसे तक हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फ़ी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। जुलाई से जनरल सर्विसेज के लिए फ़ी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सार्फिन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई है। परवेज़ खटक ने अपने मोहसिन के खिलाफ बयान देकर सियासी करियर दाव पर लगा दिया, जो 8 फरवरी को ख़त्म हो चुका था। वो कहते थे बानी पीटीआई को बनाने वाला मैं हूँ, और नौशहरा में एक नौजवान से हार गए। जरताज गुल कहती हैं जनूबी पंजाब में जलसे की इजाज़त लेंगे। खान साहब को डील नहीं चाहिए। अगर खान साहब ने डीला तो वो 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स गिरा के मुल्क से बाहर जा चुके होते हैं। खान साहब पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। देर जरूर हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो हम दरवाजे खटखटा रहे हैं इंसाफ के, एक दिन यहीं से इंसाफ मिलेगा। चाहे परवेज खटक हो या कोई भी हो, उनका अपनी ही मोहसिन के खिलाफ, अपने लीडर के खिलाफ बयान देना या वादा माफ गमा बनना, मेरा ख्याल में उन्हें तारीख में अपने लिए खुद कब्र खो दी है। उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर भी दाव पे लगा दिया, जो कि पहली 8 फरवरी को खत्म हो चुका था। उन्होंने यही फरमाया था ना कि खान साहब को बनाने वाला मैं हूँ। पता चला कि एक बिल्कुल यंग लड़के से वो नौशहरा से हार गए। हम जब साउथ पंजाब में जलसा करेंगे, एनओसी लेंगे, लेकिन अगर ये आखिरी मौके पे हमारा अपनी हटदर्मी की बिना पर, अपनी जिद की बिना पर, इमरान खान के खौफ की बिना पर हमारा जलसा कैंसिल करेंगे, हम जलसा फिर भी करेंगे और एक ही आवाज़ वहाँ से गूंजेगी, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। यहाँ पे बात करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। वाशिंगटन में नेटो इजलास के मौके पर अमरीकी महकमा खारजा शोबा उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने ARI न्यूज़ के नुमाइंदा जहांज़ेब अली से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा अमरीका पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन करता रहेगा। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत दोबारा शुरू होगी। दोनों ममालिक में अमन और इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। सिख रहनुमा के कत्ल की मनसूबाबंदी में भारत के मुलविस होने के इल्ज़ामात को तशवीशनाक करार दिया। इस वक्त हम वाशिंगटन DC के अंदर मौजूद हैं और नेटो का समिट जारी है। बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और इस मरतबा जो नेटो का समिट हो रहा है, इसका जो फोकस है वो यूक्रेन में जो रशिया की वॉर है वो है, और बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। जो इसका इफ्तिताह हुआ उस पर सदर बाइडन ने भी अपनी एक स्पीच की और उसमें जिक्र किया कि जिन चैलेंजेस का सामना है, और ये 3 रोज़ा नेटो समिट है जो कि जारी रहेगा वाशिंगटन DC में। और इसी हवाले से बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक खुसूसी मेहमान मौजूद हैं, मार्गरेट मैकलाउड, जो कि अमरीकी महकमा खारजा की पर्सन है। इनसे हम UN में भी मिले थे जब UN का इजलास हुआ था। आज फिर हमें मौका मिला तो हमने सोचा क्यों ना उनसे बात की जाए इस इवेंट के हवाले से और साउथ एशिया में जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से भी। मार्गरेट, थैंक यू वेरी मच टू बी विद द ARI न्यूज़। आपका शुक्रिया। मार्गरेट, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा, जो नेटो का समिट हो रहा है कितना अहम है और इसका फोकस क्या है? जी, इस साल हम 75 साल का सालगिरह मना रहे हैं और नेटो इत्तेहाद अमेरिका के साथ 75 साल की शक्ति मतलब ताकत, इत्तेहाद, अमन और तरक्की और इनोवेशन मना रहे हैं, और हम आने वाले 75 सालों का विजन के बारे में और तैयारी कर रहे हैं ताकि हम हमारे लोगों को महफूज रख सकते हैं। बात यह है कि नेटो के दिल में यही ख्याल है कि सामूहिक सुरक्षा यानी इज्तिमाई दिफा बेहतरीन तरीके कार है, क्योंकि अगर आप दूसरी जंगी अजीम के बाद जब नेटो बने हुए हैं उनके इत्तेहादी कितने अमन इंजॉय किया, क्योंकि उनके सेंटर पे यही ख्याल है कि अगर यही वादा है कि अगर कोई एक इत्तेहादी पर लड़ाई हो तो वो हर एक तमाम इत्तेहादी पर लड़ाई समझा जाएगा। तो अभी जो यूक्रेन के साथ हो रहा है, यूक्रेन तो नेटो का मेंबर नहीं बना, लेकिन ये जंग शुरू ही इसलिए हुई थी कि वो मेंबर बनने जा रहा था, और रशिया को ये खदशा था कि अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो उसके लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। तो हमारे नुक्ते नज़र से देखें, ये जंग इसलिए शुरू किया कि रूस यूक्रेन पर हमला किया। बिल्कुल, मैं भी यही था। तो अब क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से इस मामले को ख़त्म किया जा सके, इस जंग को रोका जा सके? हाँ, मैं रूस पर जोर देती हूँ कि ये जंग बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं अगर रूस आपने यूक्रेन के की ज़मीन से अपने फ़ौज बाहर निकले। हम देखते हैं कि इसी हफ्ते
पर भी यूक्रेन के बच्चों के हॉस्पिटल पर रूस का हमला हुआ, जहाँ पे कोई यूक्रेनी फ़ौज का ताल्लुक नहीं है, वहाँ पे कोई जवान नहीं थे। और हम देखते हैं कि ये पहली बार नहीं है, ये बार बार हो रहा है कि यूक्रेन शहरी आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करते रहते हैं। तो हम समझते हैं कि यूक्रेन की अपनी आज़ादी, अपनी खुद मुख्तारी, सॉवरेंटी और ज़मीनी सरहद को मजबूती से प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी एयर डिफेंसेस की ज़रूरत है। सो आज सुबह सवेरे अमरीकी महकमे खारजा के सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ऐलान किया कि डेनमार्क और नेदरलैंड्स अमेरिका से बना हुआ F-16s यूक्रेन को फराहम करेंगे, और उसके अलावा और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स जिनमें से पेट्रियट मिसाइल्स भी शामिल है, वही माल सामान फराहम करेंगे। जर्मनी से भी एक कोऑर्डिनेशन सेल का अनाउंसमेंट भी है, और जर्मनी पे यही कोऑर्डिनेशन सेल में माल सामान और हिफाजती सहारा और फिर तालीम सब कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो रूस से मुज़ाकरात क्यों नहीं करता अमेरिका? असलहा तो बहुत दे रहे हैं हम यूक्रेन को, लेकिन रूस से बातचीत क्यों नहीं कर रहा है अमेरिका कि भाई इस जंग को ख़त्म करो? जब वो संजीदगी से बात करना चाहते हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। आखिरकार ये जंग का हल वो यूक्रेन से बातचीत सबसे ज़रूरी है, और जो यूक्रेन देख रहे हैं वो रूस कोई सीरियसनेस से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम बात करें, जब ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने कोशिश की कि दुनिया के तमाम मुल्कों की हमायत, सपोर्ट हासिल की जाए, लेकिन हम देखते हैं कि मोदी, जो कि बहुत करीबी साथी हैं अमेरिका के, इंडिया, वो इस वक्त मॉस्को के अंदर मौजूद हैं, गले मिले पुतिन के साथ, मुआहदे हो रहे हैं, तिजारत हो रही है, तेल ख़रीदा जा रहा है, तो क्या इस पर खदशात है अमेरिका को? फ़िक्र तो है, जैसे हमारे स्पोक्समैन ने आज ही कहा, लेकिन बात यह है कि हम इंडिया समेत हमारे सब सहयोगियों से कह रहे हैं कि वो यूक्रेन के दीर्घकालिक अमन के लिए रूस पर जोर दे कि वो यूक्रेन की ज़मीन से फ़ौज बाहर निकले। तो आपको लग रहा है कि इसमें कामयाबी हुई अमेरिका को दोस्त ममालिक से बात करने में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीकन नेशंस हैं जो रशिया के साथ बातचीत कर रही हैं? मोदी जी की बात के बारे में बेहतर हो अगर आप इंडियन सरकार से पूछ लें, लेकिन हम देखते हैं कि ये यूक्रेन पर जंग जो रूस ने शुरू किया, वो न सिर्फ यूरोपीय इलाके पर असर पड़ रहे हैं। जब रूस यूक्रेन के अनाज के दरामद का इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, हमने देखा कि वैश्विक मंडी में, दुनिया के अनाज मंडी में महंगाई बढ़ गई, और हम समझते हैं कि जहाँ तक मुमकिन है हम रूस के फ़ायदा जो उनकी तेल के एक्सपोर्ट से उठा रहे हैं वो कम करें, क्योंकि जब तक उनके पास हथियार बनाने का वसाइल है, यूक्रेनी लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ अमेरिका की बहुत दोस्ती है, लेकिन पाकिस्तान और भारत की दोस्ती नहीं। काफ़ी कोशिश की गई मुज़ाकरात हों, वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुबारकबाद दी शहबाज शरीफ साहब ने, महसूस ऐसा हुआ कि बातचीत के शायद दरवाजे कुछ खुल रहे हैं, लेकिन बहुत टेंशन्स हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। अमेरिका क्या किरदार अदा कर सकता है दोनों मुल्कों को करीब लाने में? तो पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता जो है वो अमेरिका और इंडिया का रिश्ता से एकदम अलग है। हम पाकिस्तान इंडिया के लेंस के थ्रू नहीं देखते हैं। ये दोनों ममालिक हमारे लिए बहुत अहम है, और हम समझते हैं कि दोनों के लिए इस्तेहकाम, अमन, खुशहाली बहुत अहम है, और उम्मीद है कि इन दोनों के बीच में बातचीत और बढ़ जाए। जैसे आपने कहा, लगता है कि अभी दरवाज़ा ज़रा खोलने लगे, और उम्मीद है कि वो बराह रास्त बातचीत और बढ़ जाएगा। हमने देखा कि
भारत के कुछ एजेंट्स मुलविस पाए गए। यहाँ पर एक सिख रहनुमा हैं गुरपबंद सिंह पन्नू, न्यूयॉर्क के अंदर US सिटीज़न हैं, उन पर एक कतलाना हमले की साजिश की गई जो कि पकड़ी गई, अमरीकी इदारों ने पकड़ा। कनाडा के अंदर भी एक सिख रहनुमा कत्ल हुआ, उस पर भी भारत मुलविस पाया गया। कितना कंसर्निंग है ये, और अभी तक इतना अरसा गुजर चुका, कोई हमने भारतीय तफ्तीश इन्वेस्टिगेशंस नहीं देखी। अमेरिका के हवाले से क्या मौक़िफ़ और क्या भारत से बातचीत जारी है इस मामले के ऊपर? ये इल्ज़ाम बहुत तफ्तीशनाक है और हमने अब बराह रास्त इंडियन सरकार को इजहार किया कि हम कितने कंसर्न हैं और अकाउंटेबिलिटी और इन्वेस्टिगेशन कितनी ज़रूरी है। हमारी बातचीत इंडियंस के साथ जारी रखते हैं और हमने एकदम साफ से कहा कि मुस्तकबिल में ये कभी नहीं दोबारा होना चाहिए। आखिरी कुछ सवाल आपसे करूँगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान ने एक नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान में है उनको पाकिस्तान अब स्ट्राइक्स करने जा रहा है। कितना दुख होता है देख के पाकिस्तान में दहशतगर्दी, और अमेरिका के हवाले से कितनी हमायत करता है पाकिस्तान की इस दाते दहशतगर्दी के मामलात में? ये खबरें सुनकर बहुत दुखी होती है कि पाकिस्तानी लोग अभी भी दहशतगर्दी का बोझ का सामना कर रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के गैर सरकारी तंजीमों के साथ ताउन करते हैं। पाकिस्तानी सरकार के साथ एक एनुअल काउंटर टेररिज्म डायलॉग भी है और हमारे वर्किंग लेवल ताउन जारी रख रहे हैं। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कितना संगीन मामला है और हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। खबर ये कि बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। बात करेंगे आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, आगाह कीजिए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना तहरीरी फैसला जारी किया है और जिसमें अदालत ने ये करार दिया है कि 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क में मीटिंग हुई। गवाहों ने बयान दिया कि मीटिंग में बानी PTI और उसकी दीगर लीडरशिप के 15 लोग मौजूद हैं। मीटिंग में बानी PTI ने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर करते हुए कहा कि अगर गिरफ्तारी हुई तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में वर्कर्स को इकट्ठा किया जाए और आर्मी और हसास इमारतों पर हमला किया जाए ताकि हुकूमत को प्रेशराइज किया जा सके। अदालत ने फैसले में करार दिया कि प्रोसिक्यूशन ने बानी PTI के वीडियो पैगामात का ट्रांसक्रिप्ट भी पेश किया गया और प्रोसिक्यूशन ने बानी PTI के खिलाफ केस ये है कि उन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि बानी PTI से इश्तियाल अंगेजी के लिए बनाई गई वीडियो में इस्तेमाल होने वाले आलात भी जो है वो बरामद कर लिए गए हैं और मुजरिमाना साजिश से ये पुरअमन इज्तिमा भी जो है वो एक दहशतगर्दी बन जाता है। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना, उसे फैलाना, आर्मी तनसीबात, जिना हाउस पर हमला दहशतगर्दी के जुम्मे में आता है। दरख्वास्त गुजार इस फेल से जो है वो बुनियादी हकूक खो बैठा है। जमानत जो है मासूम अफराद का हक है। जमानत इस दरख्वास्त गुजार का हक नहीं जिसने PTI की दीगर क़यादत से मिलकर साजिश करके पाकिस्तान के खिलाफ जंग की। जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की। लिहाजा अदालत दरख्वास्त गुजार की जिना हाउस, अस्करी टावर और शादमान थाना केस में जो जमानत की दरख्वास्तें उसे मुस्तरद करती है। जी शुक्रिया आबिद। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, जस्टिस शुजात अली खान और वकला नुमाइंदों ने शिरकत की। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम को ओहदे का हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी। हलफ बर्दारी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। उन्हें अदालत आलिया पहुंचने पर रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जस्टिस आलिया नीलम 2013 में लाहौर हाई कोर्ट की जज मुकर्रर हुई और उन्हें 2015 में मुस्तकिल जज तैनात किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NH 46 इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील पर समाअत। हुसैन अहमद चौधरी आगाह कीजिए। जी देखें, NH 46 से मुतालिक जो दरख्वास्त थी वो आमिर मुगल की थी और चीफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो है वो उस पर समाअत की है और जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया है, रिकॉर्ड सारा जमा करवा दिया गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि अंजुम वकील की जीत का गजट नोटिफिकेशन कब का है। वकील आमिर मुगल ने बताया कि 19 फरवरी का है, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 13 फरवरी का है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आमिर मुगल की पटिशन वक्त गुजरने के बाद दायर हुई है, जिससे
طارق جہانگیری نے کہا کہ قانون کے مطابق دیکھیں گے، جو بھی ہوا فیصلہ کریں گے۔ NA-46 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیل پر الیکشن ٹریبیونل کی پٹیشنر کو الیکشن کمیشن کی جمع کردہ کاپیز فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ الیکشن ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر NA-46 کو فارم 46، فارم 45، فارم 47 جمع کرانے کی ہدایت کی ہے اور کیس کی سماعت محرم کے بعد یعنی 22 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا حسین احمد چودھری۔ سیشن عدالت میں بانی PTI اور اہلیہ کی نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ خاوند مانیکا کے وکیل زاہد آصف نے کہا سزا یافتہ لوگوں کو عدالتوں کی جانب سے سہولت مل رہی ہے، عام آدمی کو کیسز میں فیور کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے جنرل التوا کو بھی ہائی کورٹ کی جانب سے ختم کر دیا گیا۔ سیشن عدالت نے ہمیں 11 محرم تک جنرل التوا دیا تھا، ہائی کورٹ نے التوا کو کیسے ختم کیا جب معاملہ چیلنج بھی نہیں کیا گیا تھا؟ گالم گلوچ بریگیڈ اداروں اور ججز کی ٹرولنگ کرتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا۔ وکلاء اونچی آواز میں بات کر لیں تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ شبلی فراز میرے ایسوسیٹ وکیل کو کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ توہین الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن جیل ٹرائل نہیں کر سکتا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ آج IMF کا پیکیج نہ ملا تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ PTI قیادت اور حکمت عملی کی کمزوریاں ہمارے سامنے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو توہین الیکشن کمیشن کا ایک مقدمہ شروع کیا ہوا ہے اس کے خلاف ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ جیل ٹرائل الیکشن اٹیمپٹ میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے الیکشن کمیشن کو ڈیالہ جیل ہے، اس کو الیکشن کمیشن ڈکلیئر کرنا پڑے گا، تو اس پہ آج آرگومنٹس جو ہیں ابھی مکمل ہوئی ہیں، فیصلہ ریزرو کر لیا گیا ہے۔ آج IMF کا پیکیج ہمیں نہیں ملے گا تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ PTI کی پاس بھی کوئی اینڈ گیم نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیڈرشپ کی اور حکمت عملی کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ طریقے انصاف کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ اتحاد کو فارملائز کرے۔ مولانا فضل الرحمان GDA جماعت اسلامی سے ان کی لیڈرشپ کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی۔ ان سب کو ایک پیج کے اوپر لانا جو ہے وہ طریقے انصاف کا کام تھا۔ حکومت کے خلاف ایک بھرپور تحریک کی تیاری کرے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے عمران خان کو جیل سے باہر لانے کا۔ بانی PTI اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس اور الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ شعیب شاہین کے معاون وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ آپ کے پاس وکالت نامہ ہے تو جمع کروائیں، ممبر الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا۔ ہائی کورٹ میں اس کیس میں کوئی حکم امتناع نہیں ہے۔ زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ الیکشن کمیشن میں یہ کیس سماعت ہوئی ہے اور اس پر آج معاون وکلاء پیش ہوئے ہیں، بانی PTI کی طرف سے بھی اور فواد چودھری کی طرف سے بھی۔ الیکشن کمیشن نے عدم حاضری پر نہ صرف بڑا ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کے معاملات نہیں چل سکتے، اور انہوں نے کہا کہ وہ دونوں وکلاء جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں مصروف ہیں، بانی PTI کے حوالے سے بھی اور فواد چودھری کے حوالے سے بھی، تو جس پر الیکشن کمیشن میں بران نے کہا کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ مزید۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لینڈنگ گیئر میں فنی خرابی کے باعث ریاض سے پشاور پہنچنے والی پرواز کی پشاور ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ کپتان نے ایئر ٹریفک کنٹرولر کی رہنمائی سے طیارے کو پشاور ایئرپورٹ پر اتار لیا۔ محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیں بالکل یہ ریاض سے پشاور پہنچنے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز بڑے حادثے سے بچی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی بروقت کارروائی سے طیارہ حادثے سے بچا ہے۔ طیارے میں تقریباً 276 مسافر اور عملے کے 21 ارکان اس میں موجود تھے، تو جیسے ہی طیارہ لینڈ ہوا ہے، لینڈنگ کرتے ہی تو طیارے میں سے چنگاریاں اور دھواں نکلنا شروع ہوتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے فوری طور پر کپتان کو اس سے آگاہ کیا اور فوری طور پر ریسکیو ٹیمیں، فائر بریگیڈ اور دیگر عملہ وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ سول ایویشن ایئر ٹریفک کنٹرولر نے فوراً فائر اینڈ ریسکیو سروسز کو مطلع کیا، جو بروقت موقع پر پہنچ کر جو ہے فائر ٹینڈر نے کارروائی کی اور لینڈنگ گیئر میں سے ہونے والی آتشزدگی کو فوراً قابو پا کر جہاز کو بڑے حادثے سے بچایا ہے۔ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق مسافروں کو تمام ہنگامی سلائیڈنگ کے ذریعے سے ان کو جہاز سے نکالا گیا۔ تمام مسافر محفوظ رہے ہیں اور ذرائع کے مطابق اس واقعے کی بھی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں فلاور ملز نے ہڑتال کر دی، جس کے بعد کراچی کے فلاور ملز میں گندم کی پسائی اور آٹے کی سپلائی بند ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں انجم وہاب سے۔ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا اور ہڑتال جاری ہے۔
कराची में तकरीबन 100 और पूरे सिंध में 250 के करीब फ्लावर मिल्स हैं जो बंद कर दी गई हैं। आटे की सप्लाई सुबह से बंद कर दी गई हुई है। फ्लावर मिल एसोसिएशन की जानिब से कहा गया था कि विद होल्डिंग टैक्स जो लगाया गया वो वापस लिया जाए। इससे एक तो आटे की कीमत में इजाफा होगा और वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। जो भी टैक्स लगाना है वो रिटेल की सतह पर लगाएं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है कि इस जगह पे तकरीबन 150 के करीब मजदूर काम करते हैं जो आके अब सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। रोजाना उजरत जो होती है वो इनकी नहीं मिलेगी। एक मजदूर भी हमारे साथ मौजूद है, इससे हम पूछते हैं। अगर मिल बंद हो गई है तो हमारा रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे। हम गरीब लोग हैं, क्या करेंगे? हमारा तो बिल्कुल भी निज़ाम घर का, बच्चों का भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। फिर हम तो बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में 2000 से ज़्यादा मिले हैं और वहाँ लाखों मजदूर काम कर रहा है जो आज बेरोज़गार बैठा हुआ है मिलों के अंदर। जो दिहाड़ी के यहाँ पे काम करता है वो रोज़ाना उजरत उसकी 500 है, 1000 है, 1500 है, वो उसकी रोज़ाना की उजरत जब तक ये हड़ताल ख़त्म नहीं होती वो उनकी उजरत मारी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद की तालीमी असनाद की तस्दीक और काम से रोकने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। हुसैन अहमद चौधरी आगाह कीजिए। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने से मुताल्लिक वकील मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। उनका कहना था कि मेरी इस्तदा है कि मेरी दरख्वास्त काबिल समाअत है। सोशल मीडिया पर चलने वाले लेटर की सदाकत के लिए दरख्वास्त दायर की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने आपके नोट्स और पॉइंट्स जो है वो लिख लिए हैं, नोट कर लिए हैं। मियां दाऊद ने कहा कि यूनिवर्सिटी के लेटर पर सोशल मीडिया और मीडिया पर बहस हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी आप मेरिट की हद तक बात न करें, काबिल समाअत होने पर दलाइल दें, जिसके बाद दलाइल सुनने के बाद अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हुसैन। पीटीआई जलसे का एनओसी मुअत्तल करने के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। जी देखिए, पीटीआई के इस्लामाबाद में जलसे का एनओसी मुअत्तल करने के चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत करते हुए पूछा कि फरवरी से जलसे का मामला चल रहा है, इसमें मसला क्या है। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर बैरून मुल्क हैं, जब तक वो वापस नहीं आते उस वक्त तक ये केस मुलतवी कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी है, चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दिया है, करना क्या चाहते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चीफ कमिश्नर ने जलसे को मुअत्तल किया है, मनसूख नहीं किया, मुहर्रम के बाद रख लें, इजाजत दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद की बात समझ आती है, फिर आप कहेंगे 40वें के बाद सैलाब आ गया है, सर्दी आ गई है, फिर क्या होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल अगर आ ही गई थी तो उन्हें बुलाकर बता देते। शोएब शाहीन ने कहा कि हमें 27 जुलाई को जलसे की इजाजत दे दें, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आगे छुट्टियों पर जा रहा हूँ, केस को दोबारा 15 जुलाई को पीर को मुकर्रर कर रहा हूँ और दूसरा बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट कहते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्रियों की तहकीकात कराई जाएं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 2 एतराज़ात किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसूल तय कर दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना तौर के ऊपर इनवैलिड डिग्री की बुनियाद के ऊपर उनकी तैनाती को चैलेंज किया था। आईन के आर्टिकल 199 के तहत को वारंटो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। ये मुतालबा किया था कि ये इंक्वायरी करवाई जाए कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वकील बनने की क्वालिफिकेशन पर भी पूरा उतरते हैं या नहीं। हाई कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है इंक्वायरी करने के बाद जस्टिस तारिक महमूद से पूछा जाए कि वो किस कानून और किस क्वालिफिकेशन के तहत इस ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं। अदालत ने 2 मजीद सवालात पूछे। क्या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ को वारंटो रिट दरख्वास्त जो है वो दायर हो सकती है। हमने सुप्रीम कोर्ट के मलक असद अली केस का हवाला दिया। ये फुल कोर्ट का फैसला है 10 रुकनी बेंच का। दूसरा सवाल, क्या मुतबादल फोरम के तौर के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर रिट ऑफ को वारंटो जो है वो दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने असद अली केस में यह असूल तय किया है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर किसी जज के खिलाफ शिकायत ज़ेर इत्तबा हो भी तो फिर भी उस जज की तैनाती को चैलेंज किया जा सकता है। हाई कोर्ट का जज वो शख्स बन सकता है जो वकील हो और उसकी 10 साल की प्रैक्टिस हो। जो मवाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंप्लेंट के साथ मुंसलिक किया गया है उसकी बुनियाद के ऊपर शक है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो LLB की डिग्री है वो डाउटफुल है। यूनिवर्सिटी भी इसको इनवैलिड करार दे चुकी है। मुमकिन है ये जो यूनिवर्सिटीज के लेटर हैं गलत हों और मुमकिन है ये दुरुस्त हों। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर फैसला जो है वो महफूज किया है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मारूफ आलमदीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी से मुलाकात हुई है। गवर्नर ने कहा कि मुहर्रम में हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमाए कराम का किरदार काबिल सताइश है। राफिक हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी राफिक। जी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना तकी उस्मानी से मुलाकात हुई है और मुफ्ती नुमान नईम भी इस मुलाकात में शामिल थे। मुहर्रम हराम में मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़, उलमाए किराम के किरदार समेत दीगर अहमियत के हामिल उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। गवर्नर सिंध का ये कहना था कि मुहर्रम में हमआहंगी के फ़रोग़ में उलमाए किराम का किरदार काबिल सताइश है। वतन अजीज़ को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटा जा सकता है। इस ज़मन में उलमाए किराम किरदार अदा करें। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि वो उनसे रहनुमाई लेने यहाँ आए हैं और मुहर्रम में मजहबी रवादारी के लिए वो अपना किरदार अदा करें। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मकातब फिक्र के उलमाए किराम से वो मिल रहे हैं ताकि भाईचारगी की फिजा को फरोग दिया जा सके। गवर्नर सिंह ने अपील की है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी और इस्लाहात के लिए मुफ्ती तकी अपना किरदार अदा करें। मुफ्ती तकी उस्मानी ने गवर्नर सिंह के फलाही कामों की तारीफ करते हुए ये कहा है कि उन्हें खुशी होती है कि गवर्नर सिंह आवाम में मौजूद हैं और आवाम के लिए सोच रहे हैं और वो उनके काम को सराहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल रहमान की सदारत में सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है, कहना था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का। बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन से। ज़ुल्क़रनैन, और क्या कहना था मोहसिन नकवी का? जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हम सब बलूचिस्तान जाकर वज़ीर आज़म से मुलाकात कर सकते हैं। सूबे आज़ाद हैं, इसलिए हमारी कुछ हदूद हैं, हम सूबों को आगाही दे सकते हैं। वज़ारत दाखिला के मातहत टारगेट ऑपरेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी है। सहाफ़ियों के कत्ल केसेस पर वज़ारत दाखिला फॉलोअप देगी। पंजाब और सिंध में ऑपरेशन जारी है, हमने रेंजर की सपोर्ट दी है। मेन सुपर हाईवे बहुत हद तक महफूज हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सदर ममलिकत सक्खर गए और इस पर मीटिंग हुई, फैसला हुआ कि लोकल पुलिस अफसरान को डिवीजन से निकाल दिया जाए। उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी कहाँ से आई है, ये वही लोग हैं। हुकूमत पाकिस्तान का तालिबान के साथ मुआहदा हुआ, हमने उनको अपनी जेलों से रिहा किया, उम्मीद थी कि इनका रवैया ठीक होगा। उसके बाद दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ, हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। ग्रुप 15-15 और 20-20 के बनना शुरू हो गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जेलों से भी इनको रिहा किया गया। इसके बाद वो इकट्ठे हो गए और ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी थे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को हमने रिहा किया। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ, मीडिया तक बात पहुँचने में गलती हुई। ये नेशनल एक्शन प्लान के 6 पॉइंट्स हैं, किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई है। इजलास इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुल्क़रनैन हैदर।